Good morning, everyone. Uh, Today we are going to start this new chapter of chemical equilibrium. Uh, chemical equilibrium, I've already discussed that this chapter and the chapter which is going to come next, that is ionic equilibrium, they are extension of principles of thermodynamics. Okay? They are extension of principles of principle of thermodynamics, and they are primarily there to explain the or for us to practically calculate the extent of completion of any given chemical reaction. So the core idea of chemical equilibrium is to understand and quantitatively express the extent of completion of a reaction. Okay? So let us take this down. Uh, It quantitatively explains the extent of completion of any chemical reaction under a given circumstance and depending upon the quantity of reactant available to us. Okay. Now, while judging the extent of reaction or extent of completion uh, of any given reaction, the inherent parameters or the parameters which are used are uh, I mean obviously quantity of reactants हम लेते हैं but extent जो होता है वो inherently described होता है ठीक है uh, what I'm trying to say is it doesn't matter हम लोग reactants क्या लेते हैं but we have seen that कि equilibrium constant of the reaction that is a intrinsic parameter which depends upon the uh, energy content of reactant and the product, or we can say the free energy content of reactant and the product. ठीक है. So the extent of reaction ये already हम thermodynamics में देख चुके हैं. So the extent of completion is guided by
constant which is an intrinsic intrinsic property of reactant product where guided by gives free energy by their gives free energy change. ठीक है. So these are the two basic things uh, which this chapter is going to let us know. It's primarily this primary thing. मतलब सबसे primary thing जो हमको explain करता है वो यही होता है कि what is the extent of completion. ठीक है. Under a given circumstances कौन सा reaction कितना % complete हो सकता है और कौन सा ज्यादा होगा कम होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के, इसके बारे में हमको आइडिया देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज आई मीन पोस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है लाइक हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं. ठीक है. तो दो अप्रोच में एक अप्रोच जो होता है वो थर्मोडायनेमिक अप्रोच होता है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा देखा है. ठीक है. थोड़ा सा नहीं पूरा देख लिया है. जो हमने डेरिवेशन किया था डेल्टा जी से क्यू एंड क्यू से के ऊपर डेल्टा जी नॉट के को इक्वेट किया था. दैट वाज थर्मोडायनेमिक अप्रोच ऑफ कमिंग क्लोज टू इक्विलिब्रियम. ठीक है. और दूसरी चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक अप्रोच. ठीक है. काइनेटिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि लाइक इक्विलिब्रियम पर हमारा आइडिया ये रहता है कि सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है. ठीक है. तो इनिशियली मैंने अपने वेसल के अंदर में रिएक्शन वेसल के अंदर में सिर्फ रिएक्टेंट्स डाल के रखे हैं. देयर इज नो प्रोडक्ट. व्हाट विल हैपन, these reactant particles are going to interact with each other and while interacting they are going to react, right? So the reactant particles will interact with each other, uh, interact with each other and react. ठीक है. अच्छा, इंटरेक्शन जितनी बार होएगा जैसे कोई भी दो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल रिएक्ट. ठीक है. खैर वो चीज हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ेंगे. व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच गाइड देम टू रिएक्ट और नॉट. द पॉइंट ओवर हियर इज रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करके अगर या इंटरेक्ट करके ये फाइनली प्रोडक्ट पार्टिकल्स बना रहे हैं. ठीक है. एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट पार्टिकल्स बनने लगते हैं सो इस वेसल के अंदर में देयर विल बी सब्सटेंशियल नंबर और एटलीस्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स विल
keep on increasing. ठीक है? The moment we have more than one product particle, so there is an equal probability that, I mean, not equal probability, the probability of product particles interacting with another product particles keeps on increasing uh, with more and more product particles being formed. Am I making sense? तो शुरू शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो रिएक्टेंट पार्टिकल एंड रिएक्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट के पार्टिकल्स बनाएंगे, एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन होने लगेगा, प्रोडक्ट पार्टिकल एंड प्रोडक्ट पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ये वापस से रिएक्टेंट पार्टिकल्स जनरेट करने लगते हैं. ठीक है? सो एक तरफ से हमको फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है, आगे मूव करता हुआ प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ, एंड साइमल्टेनियसली हमको बैकवर्ड रिएक्शन मिलने लगता है. ठीक है? बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू reactant. Is it okay? Product getting converted into reactant. Now the point is कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट की जो चीज है, कितने प्रोडक्ट यानी कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स कंज्यूम होंगे at any given instance, that will be obviously guided by the relative presence of reactant particles. अगर reactant particles बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट जो होगा वो फास्टर होएगा. ऑन कॉन्ट्ररी, जैसे जैसे इसका क्वांटिटी कम होने लगेगा, the rate of formation of product particle will start diminishing, isn't it? And the moment this particular thing starts building up, ठीक है, product particles का count जैसे जैसे बढ़ने लगेगा इस सिस्टम में, what will happen? The rate of backward reaction will start getting higher and higher. ठीक है ना? इसका काउंट जब बढ़ेगा सिस्टम के अंदर में, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर्मेशन जो होगा that will start increasing, isn't it? Now the point is, when these two rates, that is the rate of formation of product, the rate at which product is being formed and the rate at which product is being destroyed, प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड. ये दोनों रेट्स अगर बराबर हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वेसल will become constant, isn't it? जितने प्रोडक्ट बन Yes, रहे sir. हैं एंड जितने प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, इन दोनों की क्वांटिटी अगर इन दोनों का रेट अगर इक्वलाइज कर जाए, जैसे 5 प्रोडक्ट पार्टिकल्स बन रहे हैं पर सेकेंड और 5 ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, तो नेट प्रोडक्ट पार्टिकल जो होंगे दैट विल बिकम कांस्टेंट. ठीक है? एंड सिमिलरली द रिएक्टेंट पार्टिकल्स की भी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी. दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. This state is known as equilibrium. Is it okay? अब मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछनी है. Now, there is something called static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium का मतलब होता है जहां पर कोई चेंजेस ना हो रहे हो, एवरीथिंग इज स्टैटिक एंड नो चेंजेस आर बीइंग ऑब्जर्व. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है a system जहां पर changes are taking place at microscopic level but macroscopic level पर there is no changes taking place.
मतलब नेट कंसंट्रेशन या नेट चेंजेस हमको ऑब्जर्व नहीं हो रही है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। सो इक्विलिब्रियम को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ phenomena is it? Is it a static equilibrium, permanent equilibrium, or dynamic equilibrium? हम्म, कैसा ये होना चाहिए ये प्रोसेस? So could you repeat your question as to what process are you talking about, I'm like talking specifically? about the process of equilibrium. Equilibrium is a process. It has got established, and चूंकि rate of formation of product is same as rate of destruction of product, therefore quantity of product and quantity of reactants are not changing. ठीक है? Now my question is, if equilibrium is this process, the chemical equilibrium is this process in which the concentration of product is constant. Once the equilibrium is achieved, the process of equilibrium is achieved, and the concentration of reactant is also constant. How does equilibrium qualifies? Is it a static process? Is it a dynamic process? What type of process do we see? Or does it qualifies as स्टैटिक रहेगा, डायनेमिक रहेगा? स्टैटिक रहेगा। क्यों स्टैटिक रहेगा श्रील? सर क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। हाँ ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बट क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में एक्चुअली कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी रिएक्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, और प्रोडक्ट वाला जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके रिएक्टेंट बना रहा है? It is the other way around. Even if the equilibrium is established, ठीक है, even if the equilibrium is established, ठीक है, the net amount of products and reactants are not changing, but microscopic level पर reactant particles interact करके product बना रही है, and product particles interact करके reactant बना रही है। ठीक है, मैंने clearly ये explain किया, 5 यूनिट पर सेकेंड के रेट पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर 5 यूनिट पर सेकेंड के ही रेट पर उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। therefore net amount of product is not being formed, यानी the amount of product is not increased or not increasing। ठीक है, सिमिलरली ये जिस रेट पर कंज्यूम हो रहा है उसी रेट पर फॉर्म भी हो जा रहा है, तो नेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज नहीं हो रहा है या इंक्रीज नहीं हो रहा है। इज इट ओके? बट दैट डज यस। नॉट मीन विजिबली हमको लगेगा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट रियलिटी क्या है? द रिएक्शन इज कंस्टेंटली टेकिंग प्लेस। इज इट ओके? यस सर। ओके, सो let us take down some more notes.
देखो थर्मोडायनेमिक वाला जो अप्रोच था ना वो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। सो मैंने जस्ट इसको बिना एक्सप्लेन किए हुए एज इट इज नोट डाउन कर दिया। The chemical equilibrium in terms of thermodynamics is simply defined as a compromise between state of minimum enthalpy and maximum disorder. Is it okay? ये इक्वेशन यही चीज बताता है, ये वाला इक्वेशन जो है एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली यही चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना? It's a compromise between state of minimum energy or minimum enthalpy and maximum disorder. Is it okay? And it is explained like this. ये हम लोगों को पता है, हमने देखा है, concentration of C to the power C multiplied by concentration of D to the power D, A to the power A into B to the power B. इसी तरीके से define करते हैं. We'll have a look at this further, this equation. Now I'll discuss, मतलब जो kinetic approach मैंने discuss किया उसको मैं note down करा देता हूँ. ठीक है, ये पहले मैंने डिस्कस किया था, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया हुआ था ये चीज, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया, मैंने दूसरी वाली चीज को डिस्कस किया, काइनेटिक अप्रोच को. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट. एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो ध्यानिस? कैन यू रिपीट दिस? आई मीन इफ यू कैन टॉक. सर मतलब अभी जैसे रिएक्शन में अभी 2 प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट दिया है, तो वैसे अच्छा अगर अच्छा, वो ज्यादा उसके होगी बदले ज्यादा रहे तो ओके, उस सेंस में. हाँ, दूसरे के बाद तीसरा रहेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट अगर बढ़ते जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ते जाएगा तो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? यस अच्छा, सर। these concentrations are taken at equilibrium, that we should remember. ये प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशंस नहीं है. दिस इज इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन. सो यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम लोग द concentration of a reactant and product are taken at equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं ले रहे होंगे तो ये वैल्यूज क्या डिनोट करेंगी? रिएक्शन कोसेंट डिनोट करेंगे, राइट? रिएक्शन कोसेंट टेकन इक्विलिब्रियम. Kinetics approach to chemical equilibrium states that the rate of formation of product from reactants, that is forward reaction, is equalized by rate of formation
Elimination of reactants from product, that is backward reaction. ठीक है, अब there is a small thing called law of mass action. ठीक है, law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या जरूरत होती है? ये रेट्स को डिफाइन करने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर रेट लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, इट स्टेट दैट rate of reaction is directly proportional to the concentration of a reactant present raised to stoichiometric coefficient of a reactant balanced chemical equation. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मेरा रिएक्शन है AA BB गिविंग मी CC एंड DD, तो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? माय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction will be directly proportional to concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. Is it okay? Am I making sense? That is what our law of mass action is. और वैसे भी जनरली सोचो तो रिएक्शन का रेट जितने पार्टिकल्स ए के होंगे, और मतलब पार्टिकल्स जो ए के होंगे पर यूनिट वॉल्यूम और जितने पार्टिकल्स बी के होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन होगा, राइट? उनके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी उनके कंसंट्रेशन के ऊपर या उनके रिलेटिव प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? रेट ऑफ कोलिजन ऑफ गैसियस पार्टिकल हमने देखा था ना, गैसियस के अंदर में, गैसियस स्टेट के अंदर में रेट ऑफ कोलिजन जो था वो कैपिटल N, ठीक है, which was indicative of number of particles present per unit volume, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था. If you guys remember at all, अगर नहीं याद है तो आप लोग वेरिफिकेशन के लिए लेक्चर के बाद एक बार ओपन कर लेंगे नोटबुक को तो याद हो जाएगा, देख पाएंगे. हाँ, स्टोइशियोमेट्रिक होता है, ये जो होते हैं ना टर्म्स A B C एंड D, बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, इनको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. ठीक है ना? जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं 4 सोडियम प्लस O2
gives us 2Na2O. तो यहाँ पर 2 and 4 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, where was I? ऐसा हो सकता है, और इस चीज के रेलेवेंस को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होएगा, that will be what? That will inherently be linked to concentration of reactants, isn't it? ये कन्विंस हो पा रहे हैं हम लोग कि नहीं हो पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है. अब इसके बाद ये होता है कि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट. ठीक है. तो इस चीज को आर एफ भी बोल सकते हैं हम लोग, isn't it? Forward rate. So RF is going to be directly proportional को हटा करके I can write it as small k. This is small k, not big K. ठीक है ना? Big K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये small k होता है into concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. ठीक है. This is again second modified second one. इसको सेकेंड ही लिखते हैं. और यहाँ पर केफ जो होता है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट. ठीक है. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और rate constant of forward reaction. Rate constant of forward reaction. And similarly हमारा RB भी रहेगा. RB क्या होगा? Rate of backward reaction that will be directly proportional to concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D, which can be modified as RB is equal to small kb into C raised to the power C into D raised to the power D. Is it okay? So this is going to be my third equation. Now at establishment of equilibrium, establishment of equilibrium, the forward and backward rates, the forward and backward rate equalizes, and hence we have RF equal to RB. That implies small kf into concentration of A raised to the power A, B raised to the power B,
e raised to the power c d raised to the power t. This can further be written as small k by small kb is equal to concentration of c to the power c d to the power d concentration of a to the power a into b to the power b. Is this okay? Yes. ठीक है? And all these concentrations represent what? Equilibrium concentrations. Is it okay? These concentrations are, or we can write it as, ये रेट बराबर कब होगा? इक्विलिब्रियम पर बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट्स हम लोग EQ दे सकते हैं. ठीक है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ये वाले कंसेंट्रेशन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. मतलब जहां से हमने चालू किया था उससे इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. दैट्स व्हाई टू डिफरेंशिएट दैट कंसेंट्रेशन. बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सेम रेशियो रिएक्शन कोसेंट देगा, बट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे इसका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल के. कैपिटल के. ठीक है? C equilibrium to the power C. So kf by kb क्या हो जाता है? That implies कैपिटल K क्या है? That is just a ratio of KF, forward rate constant by backward rate constant का ratio है. Is it okay? And this is known as equilibrium constant that we know. अब देखो हर बार ये इक्विलिब्रियम नहीं लिखूंगा मैं, बट अभी के लिए लिख दे रहा हूँ. ठीक है? बाकी जगह पर जब के लिखा जाएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिफाइंड है. ठीक है? इट शुड नॉट बी कि आपको एक्सप्लिसिटली हर बार इसकी जरूरत पड़ती रहे. अभी जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन ये चीज मैंने लिख दिया है. ठीक है? सो दिस इज आवर फोर्थ एंड अ वाइटल एक्सप्रेशन. एट इक्विलिब्रियम अगर कंसंट्रेशंस का रेशियो नहीं ले रहे हैं तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड एज रिएक्शन कोसेंट. ठीक है? So I can write that capital K is referred chemical equilibrium constant. ठीक है? इसमें भी स्पेसिफिकली अभी थोड़े टाइम बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज Kc Kp एंड Kx. अगर ये कंसेंट्रेशंस जो है वो सॉरी ये रिलेटिव प्रेजेंस जो है वो कंसेंट्रेशंस के टर्म में रहता है, वी कॉल इट Kc. अगर ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रहता है तो वी कॉल इट Kp. एंड अगर ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रहता है तो वी कॉल इट K. ठीक है? और मिक्स्ड रहता है तो वी कॉल इट K थर्मोडायनेमिक. ठीक है? वो K थर्मोडायनेमिक जो यहाँ पर रिलेटेड होता है. सॉरी यहाँ पे बोल रहा हूँ, डेल्टा जी वाले एक्सप्रेशन में ये K जो होता है दैट इज K थर्मोडायनेमिक. यहाँ पर K कौन सा यूज किए रहते हैं हम लोग? K थर्मोडायनेमिक.
ठीक है। और के थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वो एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है, केपी केसी के एक्स सबका मिक्स्ड होगा। जो स्टैंडर्ड स्टेट में जिस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी रिएक्शन कंडीशन में जो जिस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ चीजें सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकती हैं, कुछ चीजें गैसियस पार्टिकल के फॉर्म में हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हो। तो जो गैसियस के फॉर्म में होगा उसके लिए पार्शियल प्रेशर लेंगे, और जो ये होगा सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा उसका कंसंट्रेशन लेंगे। एम आई मेकिंग सेंस?
ठीक है. So Q जो होता है reaction quotient, that is simply defined as concentration of product raised to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. ठीक है. एंड इसमें कंसेंट्रेशंस ऑफ ए बी सी डी जो होता है वो किसी भी टाइम पर ले सकते हैं. दीज आर नॉट नेसेसरली द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन. ठीक है. और ऐसे में ये जो रेशियो आएगा इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन at the beginning of reaction Q is going to be lesser than K. बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा कम होगा या नहीं होगा और रिएक्टेंट ज्यादा होंगे. Q की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी. Q is going to be lesser than K. ठीक है. Are we getting this point? And अगर Q is less than K है, Q is less than K है, this also means that your reaction is moving in forward direction, isn't it? Reaction is moving in forward direction. Forward direction. Forward direction में move करने का मतलब क्या है? It is a product forming reaction. Product forming reaction. Product forming reaction. ठीक है. Q equal to K हो गया तो the reaction is at equilibrium, implies a reaction is at chemical equilibrium. ठीक है. एंड फाइनली Q ग्रेटर देन K हो गया तो Q अगर K से बड़ा हो गया तो क्या होगा? It will become a backward favored or reactant forming reaction. Am I making sense? Implies backward favored बोलना सही नहीं होगा. Reaction is moving in backward direction. ठीक है. That is a reactant forming reaction. ठीक है. और under such circumstances reactant formation is being favored. Is it okay? I hope these things are clear in your mind. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I should write it as this one as fifth. It's the fifth one. And these conditions as sixth. We move on to the next thing. I mean, the next point is something which I have already discussed. The nature of this equilibrium or chemical equilibrium. The process of chemical equilibrium is
प्रोसेस बोलूं या फिर स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक in nature and hence categorized as dynamic इक्विलिब्रियम। देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज समथिंग विच वी आल्सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम भी इसको बोलते हैं, और नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। दूसरा जो होता है बता रहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है या उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक, उसको इस चीज को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा लाइट आएगा बस जस्ट बियर विथ मी। और ये दिख रहा है आप लोगों को? Sorry. ये रखा हुआ है मैंने क्यूबॉइड, ठीक है। this face is called this shape can be called as considered as cuboid. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, ये जो कंडीशन है अभी हमारा, दिस इज काइंड ऑफ वी कैन कंसिडर इट एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं? ये अभी मेरे थोड़े से फोर्स डालने पर कहीं भी हिल डुल नहीं रहा है। वैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम परफेक्टली इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि इक्विलिब्रियम पर है, थोड़ा भी फोर्स किसी भी एक डायरेक्शन में डालेंगे ना, यहाँ पर वो डायरेक्शन, वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, नेवरदलेस दिस कैन बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको अगर मैं पुश करता हूं या पुल करता हूं तो इट मे फॉल डाउन, फर्दर फॉल डाउन, राइट। बट इस पोजीशन में आने के बाद अब इसको मैं चाहे कितना भी फोर्स करूंगा या बहुत लार्ज एक्सटेंट तक भी फोर्स करूंगा तो ये फर्दर गिरेगा नहीं। इसका पोटेंशियल, ये रोल कर सकता है बट इसका पोटेंशियल एनर्जी फर्दर नहीं डिक्रीज होएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? So this state, the second state is can be considered as static equilibrium, जहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी फर्दर डिक्रीज नहीं होता है, no matter what force or what condition I am going to apply or what stress I am going to apply. इसके पहले वाला कंडीशन जो था ये वाला, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी खुद से चेंज करने लायक नहीं है, बट एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई मैंने लगाया, एक्सटर्नल स्ट्रेस अगर मैंने लगाया तो दिस मे चेंज, ठीक है, टू अटेन सम अदर वैल्यू, सम बेटर स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है स्टैटिक या स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है डायनामिक या नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो हमारा स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज डायनामिक इन नेचर और इट्स अ नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम उसमें कुछ भी कंसंट्रेशन या किसी भी तरह का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्ट्रेसेस किस किस टाइप के होंगे, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। बट अगर हम स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं तो हमारा सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है,
लॉ चार्टियल प्रिंसिपल आएगा, उसके अंदर में वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा. ओके, let me get back to uh, one more thing, that is एक छोटी सी चीज और बता लेता हूँ, conceptual, and then I'll deep dive into like calculative phenomena. ठीक है. कंसेप्चुअल चीज ये थी, लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने डिस्कस किया ना, लॉ ऑफ मास एक्शन इज एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो तो हमेशा ही वैलिड होता है, बट हमारा ये जो इक्विलिब्रियम ये है ना, कैपिटल के इक्वल्स टू डायरेक्टली हमने जो कंसंट्रेशन, या लॉ ऑफ मास एक्शन भी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF into concentration of A raised to the power A concentration of B raised to the power B जो लिखा है हमने, यहाँ पर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म जो यूज किया है, this thing is valid only when the concentration of A and B are not very high. ठीक है. So I can say that the law of mass action, the law of mass action is valid in concentration terms only when concentration of reactants and products are low. ठीक है. At higher concentrations, the law of mass action gets modified. ठीक है. ये मॉडिफाई हो जाता है. मॉडिफाई कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. और कैसे होता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड, एक एफ फैक्टर आ जाता है, फ्यूगैसिटी फैक्टर, और उसके थ्रू ये मॉडिफाई होता है. ठीक है. क्यों मॉडिफाई होता है ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे शुरू में हमने देखा था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट जब दो टाइप के हैं, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं मेरे पास. ठीक है. एक ए टाइप का पार्टिकल है, एक बी टाइप का पार्टिकल है. जब दोनों बहुत डाइल्यूटेड होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो और जब कंसंट्रेशन कम होता है तो ऐसा रहता है कि इट इज इंश्योर्ड दैट एक ए दूसरे बी के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, या मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स जो होंगे वो ए और बी के बीच में आपस में होंगे. ठीक है. दैट मीन्स देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रूटफुल इंटरेक्शन. ठीक है. हावेवर जब कंसंट्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे दोनों के, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट ए एंड ए के इंटरेक्शंस भी सब्सटेंशियल लेवल के होने लगे कंपेयर टू ए एंड बी के, या इंटरेक्शंस. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर बी एंड बी के पार्टिकल्स का इंटरेक्शंस भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में होने लगे कंपेयर टू
ए एंड बी के इंटरेक्शंस, और जब ए एंड ए का इंटरेक्शन बी एंड बी का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम लेवल का होने लगेगा ए एंड बी के ए एंड बी के इंटरेक्शंस के बराबर, तो ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा दैट विल गेट इम्पेयर्ड और हैम्पर्ड, क्योंकि वो तो इसी कॉल्यूजन के बेसिस पर फॉर्म हो रहा है। और ये कॉल्यूजन का काउंट, सी टोटल काउंट ऑफ कॉल्यूजन्स जो रहेगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट उसमें से फ्रैक्शन ऑफ दिस ए बी का कॉल्यूजन जो होएगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज आउट ऑफ टोटल। सो माय पॉइंट इज सिंपली दिस कि जैसे हम अभी जब कम कम लिए हुए हैं तो मान लो 100 कॉल्यूजन्स हो रहे हैं टोटल, और ये 100 में ज्यादातर कॉल्यूजन ए एंड बी टाइप का होएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में सारे के 100 ए एंड बी टाइप के ही होंगे, 100 में ज्यादातर कॉल्यूजन ए एंड बी टाइप का होएगा। अब मैंने पार्टिकल्स के काउंट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 1600 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर में बढ़ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1600 में चूंकि दोनों टाइप के नंबर्स बढ़ गए हैं तो इनके आपस के कॉलिजन्स का काउंट भी बढ़ जाएगा, एंड ये एक्चुअली प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ए एंड बी का जो काउंट है, रेशियो काउंट, वो ऐसे बोलूं कि उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं करता है। जैसे यहाँ पर 100 में से अगर 90 कॉलिजन ए एंड बी टाइप के थे तो 1600 में द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी कॉलिजन्स विल डिक्रीज। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाई? क्योंकि ए और बी के कंसेंट्रेशंस बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ए एंड ए के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है ए एंड ए की वो बढ़ गई है। सिमिलरली बी एंड बी की पॉसिबिलिटी भी इंटरेक्ट करने की बढ़ गई है। जब इन दोनों का कंसेंट्रेशन कम कम था तो ए एंड बी के कोलाइड करने या इंटरेक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी अलग अलग टाइप वालों को। ये बात समझ में आ पा रही है? तो 1600 में दिस रेशियो मे फॉल डाउन टू, यू कैन से 70% ऑफ इट, मे बी 1000, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा ए एंड बी के मिक्सिंग से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का रेट क्या होगा? प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया, जिस प्रोपोर्शन में कंसंट्रेशन को बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा। इज इट ओके? ये बात समझ में Yes. आ रही है? ठीक है। सो अगर ये समझ में आ रही है तो फिर हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है हायर कंसंट्रेशन पर, that gets modified as this: Rf becomes equal to Kf into concentration of A raised to the power A into fugacity of A raised to the power A. Similarly, concentration of B raised to the power B into fugacity of B raised to the power B. F is known as fugacity of A and B respectively, ठीक है, and F lies between 1 and 0, ठीक है। also at low concentration F is equal to, or F becomes equal to 1. So at low concentrations F is equal to 1, at higher concentrations F is not equal to 1, ठीक है। So could Further, you scroll up for a minute? yes,
Yes, sir. Thank you. Noted. So 1 minute. Okay. Yes, sir. Done. Thank you. So after explaining this thing, I would like to let you guys walk through the graphical representation for equilibrium. ठीक है, ग्राफ कैसा दिखेगा अगर मैं कंसंट्रेशंस वगैरह का ग्राफ ड्रॉ करूं? हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? Timeline and concentration. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? Concentration of reactant will decrease over time. Am I making sense? Yes, sir. Concentration of reactants will appear to decrease. Will it become zero? No. बात समझ में आ रही है? दो रिएक्टेंट्स अगर हैं तो इस तरीके का एक का ग्राफ इस तरीके का और दूसरे का भी ग्राफ इसी तरीके का होगा. It may intersect the first graph or may not intersect the first graph depending upon the stoichiometric coefficient and the amount of reactant taken. बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट कितना लिया है मैंने, ठीक है, उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है. बात समझ में आ रही है? I hope we are in understanding this. It may intersect also, may not intersect also, will depend upon the quantity of reactant taken. ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. जो डिक्रीज करेंगे वो हमेशा क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे. और जो इंक्रीज करेगा वो क्या होगा? इट मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. यहां से अगर ग्राफ शुरू हो रहा है तो जीरो होगा. जीरो से चालू हो रहा है, रिएक्टेंट कुछ भी नहीं लिया, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया हुआ था. अगर किसी हायर वैल्यू से चालू हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है, तो इट मे स्टार्ट फ्रॉम जीरो और मे स्टार्ट फ्रॉम सम हायर वैल्यू एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीज. इज इट ओके? समथिंग लाइक दिस. एंड जब कंसंट्रेशन इनके बराबर होने लगेंगे, बराबर मतलब नॉन चेंजिंग वैल्यू को अटेंड कर लेगा, नॉन चेंजिंग वैल्यू को अटेंड कर लेगा, that state is termed as what? State of equilibrium has been achieved. So this is the time at which equilibrium has been, chemical equilibrium has been achieved. ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया तो यहां से यहां तक का रेट ऑफ चेंज जो है, ठीक है, या कंसंट्रेशन चेंज जो है, या यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन इनका है, इनका स्टोइचियोमेट्रिक ये लेकर के यानी लॉ ऑफ मास एक्शन में डालेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, सो ग्राफ अगर इस तरह से कंसंट्रेशन का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो वी कैन वेरी इजीली गेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट based on
this non-changing value of concentrations of reactants and products. Am I making sense? Hello. Yes, sir. Reactant 2, this might be reactant 1, this is product. ठीक है, वेरी गुड। और देखो इनका रिलेटिव चेंज ऑफ रेट क्या है, इससे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वगैरह को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो अमाउंट इसका, यानी ये जिस रेट पर डिक्रीज हो रहा है और ये किस रेट पर उसी टाइम में डिक्रीज हो रहा है, ये इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आइडिया देगा हम लोगों को। ठीक है, जैसे 1 मिनट में इसका 1 मोल कंज्यूम होता है और 1 मिनट में ही इसका 2 मोल कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट 2 जो है वो स्लोली कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट 1 जो है वो फास्टली कंज्यूम हो रहा है। दैट मींस रिएक्टेंट 1 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, हायर है, राइट। उसके 2 पार्टिकल जा रहे हैं तो पार्टिकल और बी वाले का एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ए का फास्टर डिक्लाइन हो रहा है और बी का स्लोअर डिक्लाइन होएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सारे लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सो रहे हैं हम लोग? आ रहा है sir. Understood. ओके फाइन। सो दैट इज समथिंग। दूसरा ग्राफ जो होता है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। सो यहाँ पर इस ग्राफ से मेरा इंटेंट ये था कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कैलिब्रेटेड ग्राफ होता तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स का विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इससे इनके रिलेटिव स्टोइचियोमेट्रिक यानी सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का आइडिया हमको लग जाता है। इज इट ओके? सो अगर इक्वेशंस में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं भी दिए हुए हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो उससे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट ओके? The second graph is when we wish to do it for a rate of the reaction and time. A rate of consumption of reactant and product. ठीक है, तो अभी देखो rate of consumption of reactant and product कैसा कैसा होगा। शुरू में रेट कैसा रहेगा, रिएक्टेंट्स के कंजम्पशन का रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा विद टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है दैट फॉल्स डाउन। ठीक है, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इक्वलाइज करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ consumption of product or rate of formation of reactant, right? And this state will be state of equilibrium.
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट ओनली जब हमको कंसेंट्रेशंस दिया रहे हैं, कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ, रिएक्टेंट एंड टाइम, सॉरी, रेट ऑफ ये rate of consumption of reactant and rate of consumption of product, ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट किस रेट पर कंज्यूम हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट किस रेट पर कंज्यूम हो रहा है, इसका भी अगर हमको आइडिया है, if that is shown or told to us, given to us, then also we can arrive at state of equilibrium, ठीक है। और इस केस में दोनों का रेट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर concentrations का इक्वल होना जरूरी नहीं है, they can be at any different, they can be at different conditions, still can comply to equilibrium, but जब रेट की ग्राफ होती है तो they have to be equal, the rates has to be forward and backward rates has to be equal, then only this thing will happen, मतलब equilibrium will get attained। क्लियर है, कोई डाउट? Okay, I'll explain next thing, the chemical equilibrium can be expressed in 4 different formats. Different formats. Kc, Kp, Kx, and K. This is equilibrium constant in concentration. This is equilibrium constant in pressure. Kc, Kp, Kx. This is equilibrium constant in mole fraction. And this is thermodynamic equilibrium। कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगा। सो इट इज सिंपली लाइक Kc जो होता है वो कंसेंट्रेशन के टर्म्स में सबके कंसेंट्रेशंस रहेंगे। इफ दिस इज माय रिएक्शन Bb, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, अभी तक एक चीज मैंने बताई नहीं है, बेसिक चीज थी, मिस कर गई। इक्विलिब्रियम को हमेशा इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज मतलब कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो वी इंडिकेट इट थ्रू दिस साइन, ठीक है। इसका मतलब होता है ये आगे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ भी जा रहा है, दोनों रेट बराबर हो गए, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकता है या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। Are we getting this point? This is called sign of equilibrium. Yes, sir. Sign of equilibrium. और इसमें भी 2 टाइप्स के साइन होते हैं, 3 टाइप्स के साइन होते हैं। केसी के पेपर में आ रहा हूँ, एक सेकंड दे दो, अब ये बता रहा हूँ तो ये सारी चीजें बता लो। और सी, अच्छा ये ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स द सेम थिंग।
मतलब ये दोनों का मतलब डिफरेंट नहीं है, इट्स द सेम थिंग। दोनों का लेंथ जब तक बराबर है तब तक बोथ द साइंस आर सेम। ठीक है, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे एक को मैंने छोटा कर दिया और दूसरे को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, जो बड़ा रहेगा ये ऊपर रहे या नीचे रहे। ठीक है, सो दिस साइन इज सेम एज ठीक है, ये दोनों साइंस एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ रही है? एंड इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा हुआ है हमने, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी is being represented something like this, CC plus DD, या तो ये साइन यूज कर रहे हैं या फिर ये साइन यूज कर रहे हो। दिस सिंपली मीन्स जो एरो नीचे हो ऊपर हो, जो एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और वो वाला एरो अगर बड़ा है, मतलब ये पीछे की तरफ पॉइंट करने वाला एरो बड़ा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन पीछे की तरफ या फिर ये पीछे की तरफ मूव करने वाला इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, this portion is something which is going to be, or this thing is something which is going to be favored in this reaction. अगर कहीं से भी हम चालू करेंगे, कहीं से भी चालू करेंगे, इसके ज्यादा कंसंट्रेशन से चालू करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली इसके ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। इसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेकर के भी चालू करेंगे तो ये बहुत कम अमाउंट तक या बहुत कम एक्सटेंट तक आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी बहुत कम सी एंड डी का फॉर्मेशन होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज अ बैकवर्ड फेवर्ड इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, और इसका ऑब्वियसली के वैल्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल। के इज स्मॉल, ऑब्वियसली के का मतलब फॉरवर्ड के की बात कर, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं जब सी एंड डी के प्रोडक्ट का देख रहे हैं। ठीक है, और अगर ये साइन इस तरीके का होता तो दिस मीन्स प्रोडक्ट फेवर्ड and K is very large। ठीक है, और इसमें ये भी होता है, मतलब इसका साइन वैल्यूज भी है, साइन जनरली 1000 से बड़ा 1000 से छोटा। अगर ये 1 by K is small 1/1000 से छोटा रहता है ना, K की वैल्यू 1/1000 से छोटी रहती है, देन इट इज said to be reactant favored reaction, and product favored अगर K 1000 से बड़ा होता है तो we generally call it to be product favored। very large, greater than 1000। ठीक है, is small or less than 0.001। ठीक है, so fine, so you know now the denotion of these things। now I'll get back to KC, KP, KX and K। AA plus BB giving me CC plus DD। ठीक है, KC इसका डिफाइन रहेगा। KC जो है अभी तक हम वहीं देखते आ रहे थे, इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन ऑफ C raised to the power C, concentration of D raised to the power D divided by concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B। ठीक है, ये है मेरा KC
Kp को इसी चीज के लिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to the power of C into partial pressure of D raised to the power of D divided by partial pressure of A raised to the power of A divided by multiplied by partial pressure of B raised to the power of B. ठीक है, मोल फ्रैक्शंस के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? kx जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C raised to the power of C mole fraction of D raised to the power of D mole fraction of A raised to the power of A mole fraction of B raised to the power of B. ठीक है, एंड नॉर्मल के थर्मोडायनेमिक जो है thermodynamic that is going to be equal to, अब यहां पर रहेगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड स्टेट में किस स्टेट में है। जैसे ये मान लो गैस है, ये एक्वस है और इधर दोनों एक्वस फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा की थर्मोडायनेमिक्स कैसा लिखा जाएगा? इट विल बिकम कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D divided by concentration, not concentration, pressure of partial pressure of A to the power of A into concentration of B raised to the power of B. Is it okay? ये चारों की अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हुई? यस सर। इसमें Yes, किसी sir. तरह का डाउट? No, sir. ओके फाइन, ठीक है, तो आज के दिन में हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप जो है दैट आई विल बी एस्टैब्लिशिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में। ठीक है, आप लोग बेसिक क्वेश्चंस इसके कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अवस्थी और फ्रॉम, या फिर रहने दो, आज मत करो, मतलब अभी मत करना, 2 लेक्चर्स हो जाने दो, फिर उसके बाद करना, 3rd लेक्चर्स के बाद करना, कल और परसों के लेक्चर के बाद करना। ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं।